हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। The landform produced by the underground water. The underground water is also on the agent of the gradation like a surface water. It also does the work of the erosion, transportation and deposition, which result in a formation of the number of picture square through the is a topographically features. Topographical feature is formed by underground water can be seen particularly in the highland composed of the limestone on a large scale. This distributive graphics formed due to the action of the underground water in the limestone region is known as the crustal topograph. The crustal word is the come from to the crust region of Adriatic Sea. Sea is a coastal and the Croatians Yugoslavia where is the such a formation and noticeable. This region is made by the limestone rock, where the underground water is the most active agent of gradation. There is a topograph is formed by underground water in the limestone region is called crustotopograph. The mechanical weathering and solution of the limestone in water help the original work of underground water. That is the most important. The topographical feature is created by the work of underground water on the limestones are two types. The first here, topographical feature formed on the surface like a sinkhole and swell at the hole. The next here, topographically feature of formed underground like a caverns, statistics and stalagmine. There is the most important here. The first point. Sinkhole. A sinkhole is a surface depression in the region of limestone or chalk terrains. Some is a sinkhole are filled with the soil washed from the nearby the hillside, and while the other are a step side is dug holes. They are developed with the way to the limestone is a more is acceptable to be solutions and weatherings are where to underground cover near the surface is a capsules. The next area is a swell hole. They are cylindrically is a shape lying underneath the sink holes at some depth in the limestone region. The surface stems is after enter the silk hole and there is a disappear of underground through the swell holes. It is a show because their holes are is connected to the underground caverns on their other side. There is the most important diagram show here a sinkhole on the surface of limestone rock. There is a visual holes at the bottom of funnel shape of is a sinkhole. There is the most important diagram here. The next is a caverns. The caverns are the interconnected to the subterranean act. Is a cavity is the bedrock formed by the corrosions action of the circulating underground water on a limestone. They are found near Dehradun and Uttarakhand and the Almora of common Himalaya. The caves of the Katomaswar as the tables, a district of the Bastar is the Chhattisgarh are famous caverns of the India. That is the most important here. And important the funnel shape depression in the limestone region is called sinkhole. A cylindrically shaped tubes lining of underneath the sinkhole are called swell hole. An underground cave formed due to the solvent action of underground water in the limestone region is called caverns. There is the most important here. The next here, there is a statistics and the stellar mines. There is the next topic. There are the major depositional feature formed in the crevice is a limestone regions. The water containing a limestone in a solution. The ships there through the roofs of the curves in the form of continuously chain of the drop. A potential of the water drops is a peak in for the ceiling get evaporated and a small deposit of the limestone is left behind on the roof. And this process continually and deposit of the limestone grow up downward like a pillars. This beauty from to the called stalactites.
Here show the diagram. Here sites and that's the mind. There is the most important. There is the underground water and well jointed limestone, cave, statics, mines and vertical columns of pillar. There is the most important diagram shown here. When the remaining and the potential of the water dropping from the roof of the caverns fall on the floor, a part of it is again evaporated and a small deposit of limestone is left behind. The deposit grow upward from the floor of the canvas. Their types of depositional feature are called stromined. As the process grow up, both astrocytes and the stromind often join together to form a vertical column in the curves. The solidified is a conical depositional feature and the hanging from the curves as a roof is called astrocytes. The bordered is a conical pillar developing on the floor of the curves in the limestone region is called stromind. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भूमिगत जल द्वारा बनी असल कृतियाँ। देखिए काफ़ी मायने में ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बहते हुए जल की धारा जो है भूमिगत जल भी जो है तल संतुलन का एक कारक है, इसके बारे में हम ग्रेजुएशन के बारे में पढ़े भी हैं। तल संतुलन इसके जो है अपर्दन परिवहन और निक्षेपण द्वारा बहुत सी अनोखी असल कृतियाँ का निर्माण होती है। भूमिगत जल से बनी असल कृतियाँ विशेष चूना पत्थर से बनी उच्च भूमि पर जो है विकसित होती है। चूना पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत जल के कार्य से बनी जो है विशिष्ट असल कृतियों को जो है कस्टर्ड असल कृति कहते हैं। कस्टल शब्द क्वेश्चन के जो है एडोनाइटिक्स समुद्री तट स्थित कस्टल क्षेत्र से लिया गया है। यहाँ इस प्रकार की असल कृति देखने को मिलती है। यह प्रदेश जो है चूना पत्थर से बना हुआ होता है और यहाँ देखा जाए तो भूमिगत जल तल संतुलन का सबसे अधिक सक्रिय कारक भी माना जाता है। चूने की शैल वाले प्रदेशों में भूमिगत जल से बनी विशिष्ट असल कृतियों को जो है कस्ट असल कृति कहते हैं और रासायनिक अपक्षता चूने की शैलों के पानी में घुलने की भूमिगत जल अपर्दन का कार्य करता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भूमिगत जल के अपर्दन से बनी हुई असल कृतियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धरातल के ऊपर बनने वाली कृतियाँ जैसे गोल रंध तथा विलियर रंध। धरातल के निचले बनने वाले जो असल कृतियाँ जो है कंदराएँ और स्टोलकटाइल्स और जो है रेटो जो है गमाइट पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहली तो हमारा यही आता है घोल रंध। देखिए ये रंध कीप के आकार से जो है गड्ढे होते हैं जिनकी गहराई 3 से 100 मीटर तक जो है होती है। इनके मुख की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक होती है और जल की घुलने प्रक्रिया के कारण चूने की शैलों में बने दरारों के बड़े होने से जो है गोल रंध बनते हैं। भारत में जो है मेघालय राज्य के चूने की शैल के प्रदेश में गोल रंध देखने को मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में गोल रंध अधिक संख्या में पाए जाते हैं वहाँ जो है सड़कें और रेल मार्ग बनना कठिन कार्य होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विलियर रंध। देखिए ये रंध जो है बेलनाकार जो है आकृतियों के रूप में जो है घोल रंधों के नीचे कुछ गहराई पर बने हुए होते हैं। चूने की शैलों को प्रदेशों में नदियां जो है घोल रंधों में घुसकर धरातल के नीचे जो है विलियर रंधों में विलुप्त हो जाती है और यह विलियर रंध जो है भूमिगत कंदराओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो चूने के शैलों के धरातल बने जो है घोल रंध जो कि ए के रूप में दर्शाया गया है और कीप की आकृति वाले घोल रंधों के नीचे बने विलियर रंध जो कि बी के रूप में आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से वह इसका निर्माण होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कंदराएँ। देखिए भूमिगत जल की जो है घुलन क्रियाओं के धरातल के नीचे बनी गुफाओं के कंदराएँ कहते हैं। चूनों की शैलों के जो प्रदेश की विशेष असल कृतियाँ हैं धरातलीय जल शोध रंधों और विलियर रंधों के द्वारा भूमिगत जो है हो जाते हैं। नीचे पहुंचकर यह जल चूने के शैलों से घोल देता है और इस प्रकार धरातल के नीचे जो है कंदराओं का जो है जाल सा बन जाता है। ये दरारें उत्तराखंड के देहरादून और कुमायूं हिमालय के जो है अल्मोड़ा जिलों में देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी क्षेत्र में स्थित जो है कुटुम्बसर की गुफाएं हमारे देश के सबसे जो है प्रसिद्ध कंदराओं में से एक माना जाता है। यदि कुछ इंपॉर्टेंट बातों के रूप में देखें तो कीप की आकृति से बने गत को जो है घोल रंध कहते हैं और बेलनाकार कृति नालिकाओं जो विलियर रंध कहते हैं। ये रंध जो है कुछ गहराई पर गोल रंधों के नीचे बने हुए होते हैं। भूमिगत जल की जो है घुलन क्रिया से चूने की शैलों के प्रदेश में बनी भूमिगत गुफाएं कंदराएँ कहलाती है।
अगला जो हमारे समक्ष है स्टेलोक्लाटाइस और जो है स्टेलोमाइन्स। ये दो चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चूनों की शैलों के प्रदेश को जो है कंदराओं में निक्षेपण प्रक्रिया से बनी प्रमुख आकृतियाँ होती है। चूना में से जल कंदराओं के छत के निरंतर बूंद बूंद करके जो है टपकता रहता है और छत से टपकने वाले जल का अंश भाप बनकर उड़ जाता है तथा यह क्रिया निरंतर चलती ही रहती है और एक स्तंभ से नीचे की ओर बन जाती है। इसे सुंदर रचनाओं को जो है स्टेलोक्टाइस कहते हैं। ऐसे चित्र आप देख सकते हो कि बड़े बड़े गुफाओं में ऐसा ही चित्र आपको दिखेगा। स्टेलोक्लाटाइट्स और स्टेलोमाइट जो है इसी तरह से बनते हैं। इसमें बनना जो है कोई विशेष नहीं होती है कि फिर भी ये जो है बड़े बड़े गुफाओं में इस तरह के जो है दृश्य आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर ये बनते हैं। कहते हैं अगर छत से टपकने वाले जल का शेष भाग जब कंदराओं से फर्श पर गिरता है तो जल का कुछ अंश भाप बनकर उड़ जाता है और चूने का थोड़ा सा अंश कंदराओं के फर्श पर चिपक जाता है। इस प्रकार फर्श पर चूने का एक स्तर या खड़ा हो जाता है और इस प्रकार चूने के निक्षेपण से बनी आकृति को जो है स्टेलोमाइट कहते हैं। जब स्टेलोक्टाइट्स और स्टेलोमाइट दोनों स्तर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिल जाते हैं तब कंदराओं में लंबा स्तंभ बन जाता है, यानी एक खंभा के आकार में जो है लंबा स्तंभ बनने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि चूने का जो है पत्थर से बने ये विशिष्ट नमूना है जिसमें भूमि का जल जो है स्टेलोक्टाइट्स और स्टेलोडाइट्स के भी साथ यहाँ पर दिखाया गया है। ये डायग्राम कई मायने में इंपॉर्टेंट है और कई मायने में ज़रूरी भी है। और ये कहते हैं अप्रमाद शैल भी आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से जो है कई बार जो है अपर्दन होती रहती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी समझ के ज़रूरी था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से दो बातें नहीं भूलना है, एक तो ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाना है, और दूसरी बात यह है कि पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपके हित में होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा।